الباب سادات کے خصوص حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید شاہ ارشد حبیب صاحب اللہ اور شہر قاضی حضرت علامہ مولانا سید شاہ رضا پیر قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری بندہ نواز صاحب اور حضرت علامہ مولانا مقبول حسین صاحب اشرفی اور جملہ مسلیان جامعہ مسجد اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم لا يذلونكم ولا يفتنونكم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ غوث اعظم بمنے دے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد انتظار کرم کس منعی را اے خدا تو خدا بینو خدا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارہ کشتی بحق خاجر عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین کشتی مدد کن یا معین الدین کشتی مدد کن یا معین الدین کشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے سراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف عطا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا جہاں تیرے خالق حسن و علا کی قسم تیرا مسند راز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے جہاں تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم یہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا تیرے خالق حسن و عطا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باب گنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ آئیے میں اس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں اسی طریقے سے آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک میں لوگ چوری کرتے ہیں، شاید نماز میں بھی چوری کرتے ہوں گے، درود ابراہیمی پوری نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یاد رکھیں بہت بڑی درود ہے وہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ربیع الاول کی 1 تاریخ سے لے کر 12ویں تک نماز عشاء کے بعد، ابھی نماز کون سی ہوئی؟ عشاء کی نماز کے بعد 25,011 مرتبہ جو شخص درود ابراہیم پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں 12ویں تاریخ تک میں اس کے خواب میں جلوہ گر۔ کون کون حضور کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ کیوں؟ کھانا ابھی لیٹ ملے گا۔ میں بھی میرے باپ کے زمانے سے آ رہا ہوں۔ جب میں نعت پڑھتا تھا تو کوئی مسجد میں نہیں رہتے تھے، بعد میں سب لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میں ایک حافظ کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی ہوں، وہ تو سب جانتے ہی ہیں، اور میں الحمدللہ کتابیں بھی لکھتا ہوں۔ تقریباً 2 درجن سے زیادہ کتابیں میں نے لکھ دیا ہے۔ ابھی اس سال عرس اعلیٰ حضرت میں میری ایک کتاب گستاخوں کا سب باب، اس کے اوپر میں نے کتابیں لکھی اور اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث پاک بھی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ العزیز باقی نعت پڑھے گی۔ پہلے درود پاک پڑھیں۔ ابھی بھی چوری کر رہے ہیں، بلند آواز نہیں ہے۔ اگر کچھ غلطی ہوگی تو اصلاح فرما دیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ اور آواز ہے بلند درود پاک پڑھیں۔ آپ قدر قرآن کے لیے مرتبہ ہو۔ نامکمل ہے اس کی محبت جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ جو حضور کا نہیں وہ کسی کا، وہ تو ہمارا بھی۔ نامکمل ہے اس کی محبت جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ نامکمل نامکمل ہے اس کی محبت جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ خلد میں کیا بھلا جائے گا وہ، خلد میں کیا بھلا جائے گا وہ، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے۔ میں یہ نعت پاک کے 2 اشعار کعبہ مکہ و مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے لکھا تھا۔ خلد میں کیا بھلا جائے گا جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہے۔ روضہ پاک کی ہو زیارت، دیکھ لوں میں بھی دنیا میں چلنا، دیکھ لوں میں بھی دنیا میں چلنا۔ روضہ پاک
जियारत, देख लूं मैं भी दुनिया में जन्नत, फिर से दर पे बुला लीजिए ना, फिर से दर पे बुला लीजिए ना, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ईश्वर पे खास तवज्जो है। काम आती नहीं मालो दौलत, शर्त है शादी की मोहब्बत। वो है ना, आका उसी को बुलाते हैं, मालो दौलत वाले को नहीं बुलाते। गरीब भी है वो भी मदीना जा रहा है, जिसको बुलावा आ जाए वो खुद मदीने पहुंच जाता है। कमाती नहीं मालो दौलत, शर्त है शादी की मोहब्बत, शर्त है शादी की मोहब्बत। कमाती काम आते नहीं माल दौलत, शर्त है शाहिदी की मोहब्बत। बिन बुलाए मेरे मुस्तफा के, बिन बुलाए मेरे मुस्तफा के, कोई तैबा को जाता नहीं है, कोई तैबा को जाता नहीं है, कोई तैबा को जाता नहीं है। खुद में क्या भला जाएगा वो, जिसके दिल में मदीना नहीं है। सादात किराम की खुसूसन तवज्जो ये मनक़बत का कार है। अपने हाथों से लाशें उठाना और सजदे में गर्दन कटाना, और सजदे में गर्दन कटाना। अपने हाथों अपने हाथों से लाशें उठाना और सजदे में गर्दन कटाना। चश्मे नम जिक्र करना वहाँ का, चश्मे नम जिक्र करना वहाँ का। करबला है तमाशा नहीं है, करबला है तमाशा नहीं है। खुद में क्या भला जाएगा वो, जिसके दिल में मदीना नहीं है। नाती आशा लिखना तलवार पे चलने के बराबर है, ऐसे ही मामूली काम नहीं है जो हम समझते हैं। अब आखिरी शेर जो मक्ता है। गर तख़य्युर में भटका वो आया, न ईमान अशरफ बचेगा, न ईमान अशरफ बचेगा। गर तख़य्युर में भटका वो आया, न ईमान अशरफ बचेगा। सोच समबा अदब तू ये लिखना, सोच तरबा अदब कुछ भी लिखना। नात है ये खिलौना नहीं है, नात है ये खिलौना नहीं है। खुल्द में क्या भला जाएगा वो, जिसके दिल में मदीना नहीं है,
کے دل میں مدینہ نہیں ہے، مدینہ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سیرت مصطفیٰ میرا عنوان ہے۔ سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 آدمیوں کو، کتنے؟ پورے 100 آدمیوں کو اس نے سب کی سیرت لکھی، اور لاسٹ میں وہ کہنے پر مجبور ہو گیا، جیسی صورت محمد عربی کی ہے ویسی سیرت کسی اور کی نہیں، جیسی صورت حضور کی ہے ویسی صورت کسی اور کی نہیں ہے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں، مائیکل ایچ ہارٹ تو کیا جانتا ہے؟ میرے آقا کا وہ چہرہ بتا، وہ چہرہ بتا جسے تو قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت لوگوں کو اگر میں پوچھوں کہ حضور کے دادا کا نام کیا ہے تو وہ نہیں بتائیں گے۔ اب میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ حضور کی ازواج مطہرات کتنی تھی یہ بتائیں تو وہ بھی نہیں معلوم، خالی یہ معلوم ہے کہ 11 تھی۔ کتنے تھے؟ نام بتائیں گے آپ؟ نہیں بتائیں۔ اب بعض حضرات تو ایسے جسے کلمہ توحید یاد نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، تقریباً آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے لے سکتا ہوں اگر آپ مجھے دیں گے تب۔ کیا آپ دیں گے؟ بولیں آپ؟ اگر بولیں گے تو پھر درود پاک پڑھیں، اللہم سیدنا محمد علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کے اوپر دیکھیں، صحابہ کرام حضور کی آداموں پر قربان۔ آپ کو معلوم ہے حضور کے وصال مقدس کے بعد جب خلیفہ اول خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی کیا کہا معلوم ہے؟ اے صحابیوں، جب تک مجھے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہوا دیکھو، جب تک تم میری اتباع کرتے رہو۔ جب دیکھو کہ میں اس سے ہٹ جاؤں تو پھر تم میری اتباع مت کرنا۔ وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتے تو وہ ابو بکر ہوتے، جو دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس ہے۔ اور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کو لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور رافضیت اتنی پھیلی ہوئی ہے، منافقین اتنے پھیلے ہوئے ہیں،
یہ بھی جائز وہ بھی جائز، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بات آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیوانہ حدیث بات یہ ہے، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو اللہ اکبر جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، جھوٹی باتوں کو گڑھیں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یاتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی نہ تمہارے بیٹوں نے سنی ہوگی، ایسی حدیث لائیں گے۔ اب حدیث پاک کہہ رہا ہے لا یضلونکم، وہ خود گمراہ ہے، ولا یفتنونکم، تم ان کے ساتھ مت رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام، منافق عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ آپ کو بولتا ہوں منافق کیسا ہوتا ہے؟ چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر روئے گا، کتے کے ساتھ رہ کر بھونکے گا، اور یعنی کہ ایک شیر کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کھائے گا۔ منافق ایسے ہی، منافق قسم کے آدمی لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے تو شیر سے کہہ رہا ہے تیرے ساتھ کھا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈر مت لو، خوف مت کھا، میں تیرے ساتھ۔ اب دیکھا کہ وہ چلا گیا، اب بیٹھا کتا ہے، کتا بھونک رہا ہے، واو 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 بول رہا ہے، بھاؤ بھاؤ کر رہا ہے۔ اب یہ کتے کے ساتھ بیٹھ کر بھونکے گا، ڈر مت لو، تیرے ساتھ ہی ہوں، تیرے ساتھ ہی ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبرا مت۔ اب دیکھا کہ کتا بھاگ گیا، اب چرواہے کے پاس آیا، اب اس کے ساتھ بیٹھ کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو بتاؤ ایسے قسم کے منافق ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں کہتے یہ صحیح ہے، اور ان کے ساتھ رہتے کہتے تیرے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ رہتے کہتے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب بتاؤ یہ خود ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے تو ہمیں کیا سبق سکھائیں؟ گستاخوں کے ساتھ بتائیں کہ اٹھنے بیٹھنے والے، میں ہمیشہ گاڑی لے کے پھرتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہر کوئی ان سے مسافہ کر رہا ہے۔ آج اتنی سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، بتاؤ سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ صحابہ نے سکھایا، اگر باپ گستاخ رسول ہے اس سے ہم بیعت کریں گے، اگر بیٹا گستاخ ہے ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو، اللہ اکبر، حدیث پاک اٹھاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں تک کہ حضرت ابو قحافہ ابھی والد محترم ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابو بکر صدیق کے والد ایمان نہیں لائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا دیوانوں، باپ اور بیٹے میں باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جانے کے بعد اسی باتوں میں اچانک ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے والد کی زبان سے حضور کی گستاخی نکل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اتنا زور سے مارتے ہیں، دوسری حدیث پاک ہے کہ اتنا زور سے مارا کہ حضرت ابو قحافہ زمین پر گر پڑے، اللہ اکبر۔ گر پڑنے کے بعد میرے آقا کو خبر پہنچی، کیوں اور کوئی غیر کیا، تم سے ہی ہو ہلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود۔ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے، فوراً حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے، تو ہمیں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے، تم نے اپنے باپ کو چپل لگائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی گستاخی میں برداشت کر نہیں سکتا، آپ کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ باتیں ہو گئی تھی اور اس لیے میں نے اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم نہ مارتے، اے ابو بکر تم نہ مارتے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے کیا کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، اور آج تو کیسا سنی ہے، سنی نہیں سنی ہے، اپنے آپ پہ رو،
हुजूर की जिंदगी पढ़ो, सीरत की बात है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी ऊपर दर्जे पर बैठ करके खाना तनावुल नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु जमीन पर बैठा करते थे। हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु जमीन पर तशरीफ रखते थे और खाना झुक कर खाते थे। हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? मेरे आका फरमाते हैं ए आयशा यही तो आज भी है, मैं जितना झुकता जाऊंगा मेरा रब उतना बुलंद अता फरमाता है, इतनी बुलंद मुझे अता फरमाए। तुम कैसे खा रहे? सीरतुल नबी चाहते हो? क्या अदाएं हमारी है? सीरत मुस्तफा का जलसा कराने वालों अपने घर को देखो, बाहर मत देखो। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ना, अल्लाह फरमा रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। किसकी पैरवी? हुजूर का उठना देखो, हुजूर का बैठना देखो, हुजूर का खाना देखो, हुजूर का चलन फिरन देखो, हुजूर का सहाबा किराम के साथ बैठने का मामला देखो, ग़ज़वा खंदक के मौके को देखो। ग़ज़वा खंदक वो ग़ज़वा है, अल्लाहु अकबर, याद करो ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा मिलकर के खोद रहे हैं, किसी के पेट पर एक पत्थर बांधा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुक़द्दस पर यानी आपके शिकम पर दो दो पत्थरें बांधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु उन सहाबा किराम के साथ उनके ही गफीर में मिल रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये देखो कि सहाबा के साथ हुजूर का मकान कैसा है। अल्लाह अकबर, हुजूर के अखलाक हसना को इमाम ने तो खुद कहा था, तेरे खुल्क को हतमे अजीम कहा, तेरी खिल्क को हतमे जमीन किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा चाहा, तेरे खालिक को हुस्न अदा की कसम। या रसूल अल्लाह, आप जैसा न कायनात में कोई पैदा हुआ हो न सुबह कयामत तक पैदा हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, सिर्फ अबू बकर ने अपने बाप ही को तमाचा नहीं मारा। कुरान मजीद उठाओ, सूरह मुजादला के अंदर आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानो आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम। गुस्ताखे रसूल का बैकाट करना ये कुरान सिखा रहा है। कौन में नहीं सिखा रहा? कौन सिखा रहा? कुरान सिखा रहा है। आबाओ को बाप है? नो, ईमानी रिश्ते में बाप अगर गुस्ताख है मेरा बाप नहीं है। ये कौन सिखाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। अब आओ जंगे बद्र में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर यानी अबू बकर के शहजादे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जलवा फिगन है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बुलाओ अब्दुर्रहमान को, बुलाओ अब्दुर्रहमान को। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप ऐसा ना करें। जब मेरे आका के हुस्न अखलाक को हजरत अब्दुर्रहमान ने देखा, फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान वो कौन से सहाबी हैं जिनके बाप भी सहाबी हैं, जिनका बेटा भी सहाबी है, वो अबू बकर सिद्दीक ही है। अब बाप अबू कुहाफा ने भी ईमान लाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर बेटे अब्दुर्रहमान है, हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो गए हैं। अल्लाह अकबर, रिश्ते में लोग सोचते हैं मामू से रिश्ता कर लेंगे। मेरे प्यारे आका आ रहे हैं तस्लीम प्यारे दीवानो, मामू की बेटी से रिश्ता करना जरूर है, लेकिन कभी ये भी तो देखा मामू मेरा रसूल का वफादार है या गद्दार है, कभी इसकी तरफ नहीं देखा। आओ वो जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा, वो उमर जिसके आजाद शहीदा सफर उस खुदा दोस्त
हजरत नाथ फारिक हक तो बातिल इमामुल हुदा मसलूल शिद्दत हजरत उमर फारूक आजम शिद्दत पसंद नहीं थे। लोग कह रहे थे शिद्दत पसंद है, याद रखो वो आपस में नर्म दिल थे। कुरान कहता है यानी कुफ्फारों के लिए सख्त तलवार से शदीद तर थे, बल्कि अपने आपस में नर्म दिल थे। अल्लाह अकबर, उनकी पहचान कुरान कह रहा है सुजदा वो कयाम और रुको के हालत में पहचाने जाते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तस्लीम प्यारे दीवानो, यही ग़ज़वा-ए बद्र का मौका है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मामू को तलब फरमाया, इसलिए कि वो जो गद्दार था यहाँ तक के फरमाया कि हुजूर का वफादार नहीं है, वो उमर का मामू है ही नहीं सकता। अब लोग अली मुर्तजा से सवाल करेंगे क्योंकि राफिज़ियत फैली है ना ज्यादा। उलमाए किराम राफिज़ियत की किताबें बहुत पढ़ रहे माज़रत के साथ। पीडीएफ में आप जाएं, अहले सुन्नत के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। मैं अहले सुन्नत का हूं, राफिज़ियत की किताबें पढ़ना छोड़ो। लोग बड़े बड़ी तकरीरें सुनते हैं, बेहतरीन बयान करता है एक शख्स, नाम नहीं बोलूंगा, लोग उसे अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते जरूर है, वाहवाही हो जाती है, लेकिन कभी उसकी किताब को खोल करके नहीं देखा, इसलिए कि उसको समझा ही नहीं है। ये हुजूर अकरम की मोहब्बत का ढोल करता है और उसके बाद आले रसूल को बल्कि गद्दारे सहाबा में शामिल करने की कोशिश करता है और लोग उससे बयान को बड़े मजे से सुनते हैं। याद रखो, बयान सुनना कमाल की बात नहीं है, वो हजारों करोड़ों साल सजदे करने वाला शैतान जन्नत में से बाहर आ गया है, तू तो जन्नत में भी गया नहीं है। और आला हजरत का शेर बहुत अच्छा याद रख लेते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो वहां भी दूर हो, ये मुनाफिकों को दूर करते हैं, वहां भी दूर हो, वहां भी दूर हो। इमाम सुन्नत ने कहा है, मुनाफिक दूर होने कहा है, इसलिए कि मुनाफिक तो हुजूर के जमाने में थे, वहां भी इस जमाने में है, इसलिए इमाम ने कहा था वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्वीर कर दीवानो, हर कोई हम रसूलुल्लाह के कहने वाला भी आजकल सोना ओढ़ करके लोगों को धोखा दे रहा है, इसलिए कि उस चीजों को समझो, ये झूठे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस कह रही है, ये लोग कद्दाब लोग हैं, ये हदीस कह रही है, ये झूठे हैं, गुमराह हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी फितनों में मुब्तला कर दे और तुम्हारे अकीदे को खराब करे। बस एक नारा लगाए हैं, सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक बात बताऊं, सहाबा सितारे हैं। सहाबा क्या है? अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद, सहाबा सितारों के मानिंद। अब उसके बाद एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते अपने अहले बैत को, मसली नूही यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मेरी आल है। कश्ती नूह से मिसाल देकर के अपने अहले बैत को रखा और कहा उस जमाने में कश्तियां चलती थी तो सितारों पर। किस पर चलती थी? सितारों पर। अब उसके बाद अहले बैत कश्ती हैं। अहले बैत क्या है? कश्ती हैं। और सितारे कौन हैं? सहाबा हैं। सहाबा सितारे हैं, कश्ती आले रसूल हैं, कश्ती इनकी है। अब अगर आले रसूल को भी आगे बढ़ना है तो सितारों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा भी मेरे अहले बैत भी दोनों एक हैं, इसीलिए कि इन दोनों को मजबूती से पकड़ो, तुम दुनिया में कामयाब होते चले जाओगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तस्वीर कर दीवानो, आज से ये तहैया करो कि हम मुनाफिकीन से नहीं मिलेंगे, न बैठेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे। ये आजकल मुंह में हो गया है। मैं फला जगह गया था लड़की देखने के लिए, वहां फला जगह में बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे देख लिया है। मैंने उससे पूछा अच्छी बात हो भैया, तुमने तो देख तो जरूर लिया है,
कभी वहां का तुमने जायजा भी तो लिया? यहाँ तक कि एक शख्स है अनंतपुर में रहता है, लेकिन नाम तो नहीं लूंगा, अपन बहुत बड़े पैसे वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, एक जमाने तक सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग हुआ करता था, लेकिन अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पर किया, मैं नाम तो नहीं लूंगा। मैंने उससे कहा तू तो इतना बड़ा पक्का था, अहले सुन्नत जमात के बलबूते पर रहने वाला था, तेरा तो सब कुछ मामला था, लेकिन तू बदला कैसे है? उसने कहा बदलने का मामला मैं समझा नहीं। तू समझता कैसे? बता दे तू अपनी बेटी का निकाह कहाँ किया? वो कहने लगा मैंने धर्मावरम में किया। अच्छा, धर्मावरम में अहले सुन्नत जमात की कितनी मस्जिदें हैं? और उसने कहा आपको क्या मालूम है? मेरे को सब कुछ मालूम है। मैंने कहा एक ही मस्जिद होगी जो सुन्नी होगी। बता के तेरा जो समझी है वो तुझसे अकीदा कैसा है? उसने कहा वो दुरूद पढ़ता है, वो सलाम पढ़ता है। मैंने कहा हर दुरूद पढ़ने वाला, हर सलाम पढ़ने वाला भी फितनाखोर है। अगर ऐसा इमाम भी मस्जिद में चंद पैसे के लिए आकर के बैठ जाता है और हम अपनी नमाजों को खराब कर रहे हैं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तस्लीम प्यारे दीवानो, मेरे आका फरमाते हैं इमाम को देखो, अगर इमाम वफादार रसूल है तो तेरी नमाज सही है, वरना वो मदीने का इमाम, मस्जिद नबवी का ही इमाम हो। उसकी भी किताब लिखता हूँ, उसके बारे में भी किताब लिखता हूँ, इंशाअल्लाह उसकी जानकारी वो जो है आपकी जबान में, यानी तेलुगु वो उसमें जो है ना इंशाअल्लाह आप तक पहुंच जाए। तेलुगु में वो उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। याद रखो अहले सुन्नत बोल करके फातिहा, अकीदा फातिहा से नहीं है, अकीदा फातिहा से सलाम से नहीं है। सब कोई सलाम के लिए फातिहा के लिए खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अहले सुन्नत जमात है, बल्कि याद रखो सीरत मुस्तफा में आने वालों जो हुजूर सल्लल्लाहु का वफादार नहीं, वो हमारा नहीं है, उसके साथ अपने ताल्लुकात क्यों कर रहे हैं? चंद पैसे के खातिर, चंद सिक्के के खातिर ऐसी जगह पर जाकर के रिक्शा कर रहे हैं, ये बेकार बातें हैं। अपने अकीदे की हिफाजत करो। मरते वक्त खबर में 3 सवाल होंगे। कितने? वहां नमाज नहीं पूछ रहा अल्लाह, परीक्षा नमाज नहीं पूछ रहा, मन रब्बू का तेरा रब कौन, मन दीनों का तेरा दीन क्या। अब सुहानी सुहानी भीनी भीनी सूरत दिखाई जाएगी, वहां हुजूर की रूहानियत नहीं होगी। यहाँ लोग समझते हैं हुजूर की रूह होंगी, हुजूर की रूहानियत नहीं होंगी। कुछ लोगों ने तो किताबें लिखा कि हुजूर को वहां से यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, खिड़की खोल दिया जाएगा। नादान, तू जानता है क्या कह रहा है? खिड़की नहीं है, आका खुद खबर में आएंगे, खिड़की नहीं खुलेगी, वो तेरी खबर होगी जो खिड़की खोली जाएगी। हमारी तो कब्र में हुजूर जलवा पूजन होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तस्लीम प्यारे दीवानो, बेहतरीन चेहरा, वो सुहाना चेहरा दिखाकर फरिश्ता पूछेगा, और फरिश्ता ये भी नहीं पूछेगा कि हुजूर वो के साथ आए हैं, वो तो पूछेगा मा कुंता तक़ूलु कि हक़ हाज़र रजुल, रसूल भी नहीं कहेगा ताकि तुझे सवाल के अंदर ही जवाब मिल जाए। वहां रजुल कहेगा, वो फरिश्ता बताएगा देख देख ये जो सूरत तू देख रहा है, सीरत मुस्तफा में एक शख्स ने बयान किया था, हुजूर का चेहरा वद्दुहा है, हुजूर की जुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा है। ये बातें हाथा मुबारक के बारे में उसने कहा था, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम कहा था, दिल के बारे में कहा था, दिल समझ से बड़ा है, वह मैं क्या कहूँ, बल्कि उनके रात वहदत के लाखों सलाम कह रहा था, अपनी ज़बान मुक़द्दस हुजूर की वहय इलाही की देखा करता था। यहाँ देख कि हुजूर रूहानियत से नहीं जिस्मानियत से आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अकीदा सही होगा तो मेरे आका खुद कहेंगे ये मेरा गुलाम। अकीदा खराब हुआ, पिटाई यही शुरू है। पिटाई कहां शुरू है? जब खबर में शुरू है तो फिर वहां की क्या है? तो कब्र की अच्छी जिंदगी बनाओ, कब्र में कामयाब हो गए तो ये पहली मंजिल से आखिर की मंजिल तक कामयाब होते चले जाओ। तो आज के बाद आप देवबंदियों से, वहाबियों से, खास अहले हदीसों से, मैं अहले हदीस नहीं कहता, मैं अहले हदीस नहीं कहता, अहले हदीस अहले सुन्नत व जमात है। अहल माने मानने वाला, हदीस पर अमल करने वाला। तो हदीस पर अमल करने वाले हम हैं, वो अहले हदीस हैं। इसलिए कि उन लोगों से बचो। आजकल उन्होंने तो नौजवान पैसे के खातिर बिक रहे हैं, तो ऐसा बिकना बंद करें। इसलिए कि
वो तुम्हें कब्र में पैसे देने के लिए नहीं आएगा, इसलिए कि तुम्हें अपना अकीदा लेकर जाना है, तो अपने अकीदे की हिफाजत करो। अब फिर थोड़ी देर के लिए सीरत मुस्तफा पर आप कुछ देर सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मैंने छेड़ा था, वो हदीस पाक का तफसीरा मैंने कर दिया। आज के बाद तहिया करें जामिया मस्जिद स्टेशन रोड में बैठकर कि हम अहले सुन्नत जमात की फिक्र पर रहेंगे, और ये तहिया करें कि हम अहले सुन्नत वाले ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और ये भी तहिया करें कि हम मस्जिद नबवी में ही क्यों ना चले जाएं, अपनी नमाज बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए कि यहाँ भी रहेंगे तो वफादार रसूल रहेंगे और उन्हीं से मोहब्बत करेंगे, और ऐसे ही लोगों से अपना रिश्ता भी कायम रखेंगे। इसलिए कि सहाबा का नारा तो यही रहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे आप आ रहे हैं तो तस्लीम कर दी बानो। अब मैंने बात शुरू में छेड़ी थी, माइकल बल्कि एच हॉट ने कहा था जिसकी जैसी सीरत थी, वो माइकल हट यानी हट कौन था? ये ईसाई था। कौन था? ईसाई था। आप मुझे एक बात बताएं, आजकल लोग कहते हैं इमाम लोगों को क्या है, इमाम लोग कोई काम करते नहीं है, बल्कि इस्लाम हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 4 दिन पहले की खबर आप उठाएं, उसके अंदर लिखा हुआ है लंदन के अंदर एक पादरी ने कलमा पढ़कर उसके साथ 3000 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। मेरे प्यारे आकारे हिस्सा तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाम जमाने में दबने नहीं आया है, इसको जितना दबाओगे उतना उभरता चला जाएगा। इसलिए तो याद रखो, मुसलमान भले खत्म हो सकता है, इस्लाम खत्म नहीं होगा। इसलिए कि मेरे आका इमाम ने कहा था, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आ जाते हैं, ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा तेरा। हुजूर के बारे में भी कहा था कि तू घटाए तो किसी के ना घटा है ना घटे, तुझे बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की शान को लोगों ने घटाने की कोशिश की। याद रखो, सूरज पे थूकने वालों, सूरज पर थूक नहीं जाती है, वापस तेरे ऊपर आती है, लानत तुझ पर बरस रही है। इसलिए इस्लाम, शायद हिंदुस्तान के अंदर लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल ना होते हो, लंदन में इस्लाम चल रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम की हक्कानियत आज भी रोज बरोज लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे तस्वीर प्यारे दीवानों, न्यूज को पढ़ें, बल्कि ये ना देखे फला जगह जुल्म हो रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है उन जुल्म का जालिम का बदला क्या देगा। वो फिलिस्तीन के मुसलमान, उन्होंने तो यही कह दिया है, हम मरेंगे जिएंगे बैतुल मुक़द्दस में रहेंगे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अली सीरत मुस्तफा। हकीकत क्या है? आज घरेलू जिंदगी हमारे ठीक नहीं है। सबसे पहले क्या है? घरेलू जिंदगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सीरत में कहां से किरदार को अपनाया? लोग कहते हैं ना इस्लाम खाली यूं ही फैल गया। पहले हुजूर ने तरबियत अपने घर से फरमाई। कहां से फरमाई? घर से तरबियत फरमाई, और उसके बाद में जाकर के बहुत दूर दूर तक ये सारी चीजें पहुंची हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि दीवानों, दूर दूर तक फैलना मतलब ये नहीं। हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक क्या था? सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान हजरत मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं, कहते हैं मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, अभी कुछ दिन पहले शायद एक गद्दार ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की तहमत में धोखा था। उसकी हकीकत समझ में आ रही है कि वो खुद जो है नाहंजार है, ऐसा शख्स है जो वलदुज़्ज़िना तो हो सकता है, सच्ची औलाद बाप की नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे आका अलैहि प्यारे दीवानों, हजरत मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर तहमत लगाता है। नादान, तुझे मालूम नहीं है अरब की जिंदगी क्या थी, यहाँ की जिंदगी क्या है। और हुजूर अकरम को इस दुनिया से गए 1400 साल हो गए हैं, लेकिन एक बात याद रख, हुजूर अकरम के जमाने की औरतें कैसी थी, आज के जमाने की औरतें कैसी है। वो जमाने की औरतों में ताकत कितनी थी, आज के जमाने में ताकत कैसी है। वहां खजूरों की ताकत थी, कहवा की ताकत थी, यहाँ की ताकत नहीं है। यहाँ की बच्चियां जवान होती है 12 साल के बाद, लेकिन आका के जमाने में
बच्चियां बालू होती थी 9 साल में और घर पहुंच जाती थी अपने शौहर की जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे प्यारे आका प्यारे दीवानों, मेरे आका ने 11 शादियां अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं की थी, इसलिए की थी कि अज़वाजे मुतहरात से दीन का काम फैलेगा, इसलिए शादी की थी। नादान हजरत आयशा को कम उम्र में शादी करने का मतलब ये है कि 1 से ज्यादा अहादीस की हाफिजा हजरत आयशा थी। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिसीन में सबसे बड़ी मुहद्दिसा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा थी और हाफिजुल हदीस में से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इन दोनों की वजह से आज इस्लाम की रहमानियत फैली हुई है। ज्यादा छोटी उम्र में मतलब ये है, छोटी उम्र में जो चीज बताई जाती है वो बूढ़ी तक याद रहता है, इसीलिए हुजूर ने उनसे निकाह फरमाया था, ना कि अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। नादान ना आयशा पर मत हो, इसलिए आयशा की बदौलत हमें इस्लाम मिला है, आयशा की बदौलत हमें इस्लाम की हक्कानियत मिली है, इस्लाम की बदौलत हमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बदौलत हमारी जिंदगी संवारने का मकाम मिला है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान को अगर कोई मसाइल पूछना होता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आते थे। अल्लाहु अकबर। बताओ, अभी मैंने हदीस पर बता रहा था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास सहाबा किराम आते हैं, कहते हैं या रसूल आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर का किरदार क्या था, मुझे बताओ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, क्या तुम नहीं जानते हो कि आका के अखलाक कैसे थे? काना खुल्कुहुल कुरान, कुरान उठाकर देख लो, यही आयशा फरमाती है। अल्लाहु अकबर। हुजूर का अखलाक कुरान मुक़द्दस है। किसने कहा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इनके खिलाफ भोको मत। हजरत आयशा सिद्दीक़ा को भी हुजूर ने तरबियत की, ऐसा नहीं है कि उन्हें तरबियत नहीं, तरबियत की तभी तो आगे बढ़ी। ये भी अज़वाज मुतहरात में थी। सबसे पहले निकाह हुजूर ने किससे किया? हजरत खुदैजा से किया ना। हजरत खुदैजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुदैजा की तारीफ करते थे। क्या करते थे? तारीफ करते थे। एक दिन रहा नहीं गया हजरत आयशा सिद्दीक़ा से, उन्होंने कहा क्या बार बार वो बूढ़ी बूढ़ी हो औरत का तस्करा करते? क्या कहा? बार बार बूढ़ी औरत का तस्करा करते जिसके होठ सूखे हुए थे, टुकड़े हुए थे और नीचे को आए हुए थे, ऐसी औरत का तस्करा करते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल दे, हुजूर ने कहा है आयशा जबान बंद, तो हजरत खुदैजा के बारे में कहती है, तूने खुदैजा को जाना क्या है? मालूम है गारे हिरा में गया था मैं, अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो रही थी, उसी ठंड को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं वहां से पलट कर आया, मकान में गया। जाने के बाद मैंने कहा खुदैजा गम दिलोनी, मुझे चादर दो, मुझे चादर दो, मैं बर्बाद हो गया। कितना कहना था तो हो, हजरत खुदैजा ने जवाब दिया आप बेकसों के सहारा हैं, आप बेरहरवों के रहनुमा हैं, आप यतीमों के सहारा हैं, आप बेवाओं को अपने निकाह में लाने वाले हैं। आपको कैसा रब, आपको बल्कि आपको अपना रब कैसा जाए फरमाएगा। और उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जैसे मेरे आका ने कहा, याद रखो जब इस्लाम का मानने वाला कोई नहीं था तो हजरत खुदैजा मानती थी। जब हजरत खुदैजा ने मेरी मदद की थी, सारे मक्के वालों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे बैकात कर दिया था, लेकिन यही हजरत खुदैजा थी जिसने मुझे सहारा दिया है। ए आयशा, अगर दीन पर किसी का ज्यादा हक हुआ है तो हजरत खुदैजा है, इसीलिए कभी इनके खिलाफ अपनी जबान पर कभी मत लाना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु प्यारे दीवानों, ये सीरत है। 11 निकाह किए तो ये को नहीं पाल रहा, 11 की क्या बात करता है? मेरे आका सबको एक नजर से देखते थे। 11 बीवियां थी, किसी को ज्यादा मोहब्बत दी, किसी को कम दिया, ऐसा नहीं।
अगर किसी के लिए एक तोहफा लाया तो सबके लिए। तेरी जिंदगी क्या है, बूढ़े माँ बाप की जिंदगी क्या है, आउट हाउस में डाल दो अपने माँ बाप को। सीरत मुस्तफा में आ गए, मुंह उठाकर अपने वालिदैन को छोड़ दिया। मालूम है आपको, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हुजूर दूध पीते थे लेकिन किसी का हक नहीं मानते, किसी का हक नहीं मारते थे। तो कैसा भाई है, अपने भाई का हक मार रहा है? कैसा भाई है तू, बता कैसा भाई है जो अपने भाई का हक मार रहा है? एक बिस्म जमीन भी मारेगा ना, अल्लाह पूरे सातों जमीन का तोप तुझे डालेगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहता है ना, अभी तकरीबन 5 दिन पहले रैसूर की सरजमीन पर एक शख्स कहने लगा कि बहन का हिस्सा नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि बाप ने हमारी जिंदगी नहीं पानी। अरे नादान, कभी ये जिंदगी भी सोचा तूने? तुझे बाप पैदा किया, तुझे बाप ने चलना सिखाया, तुझे बाप ने उठाया, तुझे रातों भर तू पेशाब कर देता, तेरे पेशाब पर सोता रहा, तो बाप ही की इज्जत नहीं जानता। लोग कहते हैं माँ तो बराबर है, माँ के हक को तो अदा करेंगे, बाप को नहीं। लेकिन मेरे आका ने अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं बाप जन्नत के दरवाजे से 20 का दरवाजा है। अगर तो बाप के साथ ऐसा करेगा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि माँ के कदमों में जन्नत है। अगर तू बाप को राजी करेगा तभी तो जन्नत में दाखिल होगा। अगर बाप को ही राजी नहीं करेगा तो फिर जन्नत में कैसे जाएगा? जन्नत में जाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, लेकिन वालिदैन की खिदमत करने की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग इल्ला माशाअल्लाह नहीं कहता। अपनी जिंदगी को देखे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यहां तक कि दूध पिलाने के जमाने में भी किसी का हक नहीं मारा। आपको मालूम है मक्के मुकर्रमा से हलीमा सादिया ने हुजूर वसल्लम को अपने वतन ले गई। ले जाने के बाद दूध तो था नहीं, लेकिन दूध भर गया। मैं हदीस नहीं बताता, बल्कि कुछ नहीं था, बल्कि अल्लाह ने बहुत सारी चीजें अता फरमा दी। और उसके बाद जब दूध आने लगा तो मेरे आका ने एक तरफ से पिस्तान का दूध दिया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं तो मैं दूसरा पिस्तान उनके मुंह में डालती तो हुजूर नहीं पिया करते थे, इसलिए ये हिस्सा मेरा है और ये हिस्सा मेरे रिजाई भाई का है। रिजाई भाई का हिस्सा हुजूर ने मारा नहीं, और तेरा खुद का भाई का हिस्सा तू मार रहा है। रिजाई माँ का हिस्सा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम प्यारे दीवानों, सीरतुन नबी को अपनाओ, वालिदैन की खिदमत करो, ये सीरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तज्जिबा है। आपको मालूम है मेरे आका घर में भी वैसे ही रहते थे जैसे बाहर रहते। सीरत कहां मालूम होती बता? बाहर अब्बा डालने को आया, बेहतरीन है, कपड़ा डाल लिया है, बस जैकेट मेरी तरह डालना है, बहुत आलीशान, बहुत टकाटक बंधा हुआ है, अल्लामा साहब है, कामा है, बहुत कुछ है, सब बन के आया है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं। मेरे आका की सीरत घर ही है। मेरे आका की सीरत क्या है? घर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के घरेलू जिंदगी, आज माशिरती जिंदगी, आज हम अपने घर की जिंदगी को बाहर बता रहे हैं और बाहर की जिंदगी को अंदर ला रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैं तुमसे बेहतर हूं अपने घर में। अगर अखलाक घर में अच्छे रहेंगे तो बाहर भी अच्छे रहेंगे, वरना फिर घर में अच्छे अखलाक नहीं है, बाहर अखलाक दिखाने का फायदा नहीं। इसलिए तो घर में अगर वालिदैन की खिदमत करता है, बाहर वाले भी उसका सिला देंगे। अगर घर में भाई के साथ मोहब्बत करता है तो बाहर वाले भी उसकी भाई की जैसी सोहबत करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोग मालदारी पर फख्र करते हैं, मैं मालदार हूँ, मैं मालदार हूँ, मेरे पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, मेरे पास इतना सरवत दिया है। आखिरी बात बता कर इस गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसे मालदार थे
ऐसे मालदार थे, अल्लाह अकबर, जो एक बार मेरे आका के दरबार में पहुंचा, वो इतना लेकर निकल गया कि उसे सारी जिंदगी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्यारे आका तस्लीम प्यारे दीवारों, एक सहाबी रसूल है हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी ककड़ी पेश की गई। कितनी बड़ी ककड़ी खाते हो ना, ककड़ी पेश की गई। मैंने आकर के हुजूर से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी इनायत फरमाएं, तो हुजूर ने अता फरमा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेहतरीन बकरियां पहली हुई थी, बकरियां रखी हुई थी। मैंने जाकर के हुजूर से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां कितनी बेहतरीन है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम लेना चाहते हो? इतना कहना था, हाँ लेना चाहता हूँ। अगर आज का आदमी होता, एक लेकर जा, दो लेकर जा, तीन लेकर जा। हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं एक दो नहीं, मेरे आका फरमाते जा पूरा रेवल लेकर चला जा। मेरे प्यारे आका दीवानों, फिर उसके बाद मैंने देखा कि हुजूर के पूरे मकान पर एक ऊंट भरे पड़े हुए हैं। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज भी गुजार हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये तो बताएं, ये माल इतना बड़ा पड़ा हुआ है, इतना साजो सामान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, वो मुझे इनायत फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं जा ये भी लेकर चला जा। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद मैं कुफ्फारों मुशरिकीन के पास गया। मैंने जाने के बाद कहा ए कुफ्फारों मुशरिकीन, तुम कहते हो ये रसूल नहीं है, तुम कहते हो ये नबी नहीं है, तुम कहते हो ये अल्लाह के हबीब नहीं है, तुम कहते हो ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी नहीं है, तुम कहते हो बताओ ऐसा कोई मालदार यहाँ है क्या? ऐसा मालदार हो। मैंने ककड़ी मांगा तो ककड़ी दे दिया, मैंने बकरियां मांगी तो रेवड़ अता कर दिया, मैंने ऊंट मांगा तो ऊंट दे दिया, मैंने जायदाद मांगी तो जायदाद दे दिया, सब कुछ मुझे दे दिया है। अल्लाहु अकबर। तुम भी आओ, दौड़ कर आओ, उस मोहम्मद अरबी को ईमान ले आओ। अगर लेकर आओगे तो तुम्हें भी अल्लाह मालदार अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका प्यारे दीवानों, हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं हम दौड़ कर हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया ऐ सुफियान, तुम खुद माल क्यों लेकर जा रहे हो, बल्कि इन सारों को भी मैंने तुम्हें मालदार बना दिया है। तुम्हारी क्या मालदारी है? गुस्साखों के साथ रिश्ता करते हो। तुम्हारी क्या मालदारी है? पैसे की बिना पर बात से दूरी इख्तियार करते हो। एक बात बताओ, सऊदी अरब में एक बच्चा कमाने गया। कहां गया? सऊदी अरब में गया। वहां जाकर अय्याश बन गया। वहां जाके क्या हुआ? पैसे फुल कमाने लगा। अल्लाह ने मालो दौलत दी, बहुत कुछ दिया। बाप यहां फकीर था। बाप यहां क्या था? फकीर था। फकीरी जिंदगी गुजारता था, लेकिन वो जीव तो कैसा कैसा कर्जा लेकर अपने बेटे को पढ़ाया, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। वो भी यहाँ का नहीं, अरब का। पहुंच गया हिंदुस्तान के मवाफिक तकरीबन 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह कमाने लगा। कितने? कम है, 25 लाख तनख्वाह कमाने लगा। इंडिया के पैसे 25 लाख, वहां के नहीं, यहाँ के। कमाते कमाते वहां जगह भी लिया, वहां घर भी बना लिया। अब वहां के सीनियर सिटीजन ले लिया। अब सब हो गया तो क्या करता? जब पैसे आ गए तो इसे यहाँ की तो जरूरत नहीं, वही रहने लगा। चलो अल्लाह बेहतर करे कि वो अरब में रहने लगा, हुजूर के पास रहने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बाप ने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा मेरी हालत अभी भी वैसे ही है, वही कर्जे हसना पर चल रहा हूं, तू कम से कम पैसा भेज दे तो मैं कर्जे हसना चुका लूं, ताकि मैं भी तेरे साथ आकर के वहीं रहने लगूं। आपने क्या कहा? मुझे भी वहां बुला ले बेटा। तो इतना कहने के बाद बाप की एक आरज़ू थी कि बेटा तू अपने पास मत रख, कम से कम शहर मदीना की ज़ियारत तो करा दे। इतनी ख्वाहिश थी। लेकिन बेटा कहने लगा कि तेरी किस्मत में नहीं है तो आने की जरूरत नहीं। अब बाप हारा मांदा बैठ गया। एक ही औलाद था, एक ही बेटा था, जायदाद गिरवी कर रखा, पैसे लिखा, सब रख करके उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा करके भेज दिया। भेजने के बाद वहां गया, लेकिन अचानक उसका एक दोस्त था जिसने गुर्बत की जिंदगी काटा था। उसने बाप की जिंदगी को देखा था, माँ कैसे चली थी उसने देखा था, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्त को सिखाता था कि बेटा मेरे दोस्त अपने वालिद को ऐसा नहीं करते, अपने बाप को ऐसा नहीं करते।
ऐसा नहीं झिड़के, उसने खून और पसीना एक करके तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी जिंदगी को बनाया, बल्कि तुझे यहाँ तक लाकर पहुंचाया, कम से कम बाप का तो सहारा बन। उसने क्या कहा, तेरी दोस्ती भी मुझे मंजूर नहीं है कि तू हमेशा बाप ही की बात मुझसे करता रहता है। कभी मेरे भी बारे में बोल कि मैंने इतनी बड़ी जायदाद कमाई, सऊदी अरब में मैंने घर बना लिया, इतना बड़ा सब कुछ मेरे पास है। अल्लाह अकबर। अब अचानक उसके दोस्त के दिल में मोहब्बत उससे बाप की पैदा होती है। उसने क्या किया कि ऐसा करो, अपने बाप को, अम्मा को और इसके माँ बाप को दोनों को उमरा पर बुला लिया। बुलाने के बाद, वहां लाने के बाद वो कहा कि आप मेरे मकान पर रहें, कभी उससे घर पर मत जाएं, इससे कि यहाँ आकर वो अय्याश हो गया है, कहीं ऐसा ना हो तो आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता नजर आए। इसलिए कि सऊदी गवर्नमेंट बड़ी खतरनाक है, अगर कुछ हो जाएगा तो फौरन तुम्हें भेज दिया जाएगा, और वो सबसे लगाव रखा हुआ शख्स है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहि सल्लम, इतना कहने के बाद बाप, उसके बाप ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। फिर उसके बाद वो अपने ही मकान पर रखा। रखने के बाद उसने कहा यहीं पर रहें। अचानक उसकी वालिदा निकल करके अपने बेटे के महल की तरफ देखती है, खुश हो जाती है तो मेरा बेटा इतना बड़ा महल बना लिया है। लेकिन अचानक उसके घर में नौकरानी की जरूरत पड़ती है तो वो अपने दोस्त को फोन करता है, कहता है कि कोई नौकरानी हो तो भेज दे। इतना कहना था कि उसने कहा नौकरानी तो नहीं है बल्कि तेरी माँ मौजूद है, क्या मैं तुझे भेज दूं? अल्लाह अकबर। उसने जैसे कहा तो कहा भेज दे, तो भेज दिया गया। भेजने के बाद वो लड़का रात में आता है, शराब पी करके रास्ते में आता है, घर पे आता है, अपने साथियों को साथ लाता है। सब लाने के बाद आवाजें करता है और माँ आकर कहती है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये कैसे मामलात है, तुम अपनी जिंदगी को कैसे तब्दील कर दिए हो, यहाँ शराब अय्याशी कर रहे हो। कितना कहना था। दोस्तों ने पूछा कि भैया बता ये कौन बुढ़िया है, ये बुढ़िया कौन है जो ऐसे तेरे को सबक सिखा रही है? उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी माँ है, इसलिए कि वो माँ जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, वो माँ जो खून पसीना करके अपने पेट को मार कर तुझे खाना खिलाया, वो माँ जिसने तेरी सारी जिंदगी बल्कि तू रोता रहा तुझे सहलाती रही, वो माँ तुझे रास्ता दिखाती रही थी। लेकिन उसने अपने दोस्तों से कहा ये बुढ़िया ये मेरे घर की नौकरानी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहि सल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे औलाद का क्या करोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिए हो, कभी इसे दीन की तालीम की तरफ नहीं लाए, कभी उलमा के पास जो जानवर नहीं दिखाया। सीरत मुस्तफा मतलब ये नहीं है, हुजूर की घरेलू जिंदगी को सामने रखो। हुजूर वसल्लम ने दाई इल्लाह थे, दावत दीन देने वाले थे, लेकिन दावत दीन घर से दिया था और उसके बाद बताया था माँ का मकान क्या है। आज गैर लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को मकान नहीं दिया है। याद रखो इस्लाम ने औरतों के मकान को काबे से बुलंद किया है, औरतों के मकान को काबे से बुलंद किया है। तो बताओ कि इस्लाम ने औरतों को क्या हक नहीं दिया है? तो उसने कहा अपने दोस्तों से ये मेरी माँ नहीं है, नौकरानी है। अल्लाह अकबर। माँ ने जैसे ही सुना नौकरानी है वहां से निकलने के बाद उसके जबान से सिर्फ आह निकले। कुरान में उफ आया है, उफ लकुमा, माँ बाप को उफ मत करो, लेकिन बद्दुआ वो नहीं है अल्लाह से बर्बाद कर दे, इसे हलाक कर दे, ये बद्दुआ नहीं है। आह निकल गई यही बर्बादी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सऊदी अरब की सारी घरें उनसे छीन ली गई, छत उससे पास नहीं रहा, सब कुछ उससे लूट लिया गया। फिर आखिर में सऊदी अरब में भीख मांगने लगा। भीख भी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि भीख तो वही मिला करती है जहां से तू निकला है। लेकिन वो उसका जो दोस्त था उसने उसके वालिदैन को सही सलामत हिंदुस्तान भेज दिया और उसने इसकी पूरी सारी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। लेकिन याद रखो माँ की आह ने उसे बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे ही अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा सिखाओ,
अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी बताओ, अपने बच्चों को हुजूर वसल्लम के करीब लाओ। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं जिसके दिल में 3 चीजों की मोहब्बत होगी वो कभी अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले मेरी मोहब्बत उसके दिल में डालो, इसलिए कि जब आका की मोहब्बत उसके दिल में आएगी वो कभी गद्दार रसूल नहीं बनेगा। मेरे आका फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में डालो, इसलिए कि जब मेरी मोहब्बत मेरी आका की मोहब्बत उसके दिल में आ जाएगी फिर वो कभी रास्ता नहीं भटकेगा। मेरे आका फरमाते हैं उसे कुरान की तालीम दो, इसलिए कि जब कुरान की तालीम पर अमल करेगा वो बाप और माँ का वफादार बनता नजर आएगा। तो आज से यही सबक दे अपनी औलाद को, कुरान की तालीम दे, कुरान मुकद्दस को पढ़ाएं। लोग सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कितनी फीस देते हैं आप, कितने पैसे देते हैं आप? हाँ, इतने पैसे आप स्कूल में खर्च कर रहे हैं। कम से कम 1000 रुपया देकर किसी आलिम दीन से अपने बच्चों की तरबियत कराओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बेटा हाथ से निकल जाए फिर उसके बाद मेरे हाथ में ना आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यही हमें सबक देता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जब तक कि मैं सुन्नते रसूल पर रहूंगा तो मेरी इत्तिबा करो, इसलिए कि सीरत मुस्तफा इत्तिबाए रसूल है। अगर इत्तिबाए रसूल पर अमल करोगे ये दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी तुम कामयाब हो जाओगे। मर्दा खुदावंदी में दुआ है, ऐ पाक परवरदिगार आलम कहने सुनने में लफ्ज़ खामियां गलतियां हुई हो मौला उसे माफ फरमाते हुए इलाहुल आलमीन मौला तबारक व तआला इन तमाम बातों पर पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन मौला जो कुछ कहा गया है मौला खुसूसन सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले बाद में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मौला तेरे प्यारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम सबको अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और गद्दारों से हमें दूर रहने और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। मौला कहने में सुनने में लफ्ज़ खामियां गलतियां हुई हो या मेरी ज़बान से कुफ्र का लफ्ज़ हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।